Okay, Mr. Sujoya, you are ready? Yes, sir. Okay. So I'm going to take your test. So first I'll do Hindi to English rapid fire. Okay. The first sentence, कितने लोग तुम्हारे घर आते हैं? How many members come to your home? ओके. तुम किसके घर जाते हो? तुम किसके घर जाते हो? हम्म. With whom do you go to home? नहीं नहीं, अभी सुजोय का टेस्ट चल रहा है. तुम किसके घर जाते हो? जिसका टेस्ट है वही बोलेंगे. Whose house do you visit? ठीक है. या डू यू गो? कौन नहीं जानता है? Who doesn't know? कौन जानना चाहता है? Who wants to know? कौन जानना चाहता था? Who wanted to know? किसे जानने की ज़रूरत है? Who wish to know? Wishes to know? Who needs to know? Needs to know. Needs to know. किसे जानना चाहिए? Who should know? किसे जानना चाहिए था? Who जानना चाहिए था? Who wanted to know? Who should have known? Should have. अच्छा, sorry sir. Who should have known? हाँ. मैं क्या करूं? What I am supposed to do? ठीक है, ये भी हो सकता है. What am I supposed to do? What should I do? What मतलब should I? थोड़ा सिचुएशन अलग होता है. मुझे क्या खरीदना चाहिए? What should I buy? What should I buy? तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? What should you have? What should you have? ठीक है. आपका दूसरा टेस्ट है that there is a beautiful lady sitting in the park and you get a chance to talk to her. So how will you talk? Okay. Suppose I am First, that lady. I am that lady. Okay. Talk. Okay. I'll go to her and ask about her name. Okay, then start asking. I'm that lady. Hello. How are you? Yeah, hi. I'm good. How are you? I'm good. By the way, may I know your name, please? Oh, my name is Jia. Jia. I must say you are very beautiful. Oh, thank you so much. Even you look quite handsome. Yeah, thank you. By the way, where do you stay? I live in Delhi. Delhi. And what do you do? Oh, I do nothing. Nothing means you must have done something. If you're asking about my qualification, so definitely I have completed my graduation, my post graduation. Having said that, I would say that I do nothing. There's no job, no business. So how do you spend your time? I mean, I spend my time coming to the park, talking to my family members, and sometimes I come across some handsome people like you. okay, that's great. So can we be friends? See, it's not something that can be decided in a jiffy. We must spend some time together, try to know each other very well, and after that, we can come to the conclusion whether we can be friends or not. Yes, that is my intention. Let know each other first, then can it could make friendship. Yeah. So you are basically from Delhi, or you born and brought up in Delhi, or you are from another place? No, Because I'm from actually West Bengal. You're from West Bengal. In which part? 24 Paragana. Oh, then you must sing, dance, and do some cultural activities.
Yeah, I'm whiz at dancing. You dance. Hmm. Are you professionally dancer, or you just it's your hobby? It's my hobby. I have learned it, but whenever I dance, you cannot say that I am less than any professional dancer. Oh, great, great. सर और क्या बोलूं सर? शादी हुई है कि नहीं सब. अच्छा. Are you married? Yes, I am married. How long have you been married? I have been married for 5 years. 5 years. Do you have any kids? No, I don't. So are you planning for any kids right now? No, I'm Since it's not planning. been I'm not 5 years. I'm not planning. As a matter of fact, I got married when I was just 21, and now I have Okay. completed 5 years. It means now I'm 26. So I'm planning to at least wait for 1 or 2 more years. Okay. What does your husband do? My husband has a business. Okay. It's his family business or his startup company? He has started a new business, I would say. Okay. So why don't you help him? Because you just told me you completed your graduation and you are doing nothing, spending time in park. So it's good to help your husband. Because I am not interested in the business that he has been doing. Okay. So why don't you focus on your dance? First, I thought to focus on my dance, but when I saw the facial expressions of my husband, Mm-hmm. I did not go for it because he did not want me to join any practice class or anything. That's the So reason I stopped it. he doesn't support you. He likes my dance, but he always says, if you have to dance, dance in front of me, dance at any party while we attend. But do not be a professional dancer or do not pursue it. Don't join any practice group going somewhere else whether you have to dance and there would be a lot of boys. This is his thought. Okay. Okay. Understand. और क्या बोले सर? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है अभी. So, Mr. Sujoy, now can I ask you something? Yeah, sure. As you know that I am married and I have been married for 5 years, Yeah. and you know the nature of my husband too. Mm. Despite it, would you like to be my friend? Yeah, I am always be fed. I wanted to be fed with you. Don't you think that your wife may have any objection? No, because I am committed, and no, we can meet. We can have friendship. Okay. Okay, then when I go back to my home, I'll talk to my husband about you. Yeah, sure. Why not? And one day I can invite you to tea. Yeah. Yeah, sure. I'll definitely come, Oh, lovely. and your family as well. It was nice talking to you, Mr. Sujoy. Yeah. Thank you. Okay, thank you, thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. But how will you meet me next time? You're not going to ask for my mobile phone number? I think he will be here only. I can hear contact here. If you want me to come, I will. Yeah. Sure. Okay. See you tomorrow at the same Yeah. place. Yeah. Thank you. Bye bye. Bye bye. Okay. Lovely, Mr. Sujoy. Love. खूब भालो. Thank you, sir. सही था तो सुजोय तो पास हो गया. Your voice is also lovely, sir. It totally changed while speaking, sir. सर कुछ टेक्निकल कुछ ये आप लोग कन्वर्सेशन कर सकते थे. Could have discuss some technical things. ये लड़के के बाद चक्कर में उतना नहीं होता है सर. लेकिन I'm not good at
But to impress anyone. as far as my interest is concerned, I am always so much, good at talking related to such things. Yes, sir. You are a very romantic guy, I can say. Mm-hmm. Okay, that day we were talking about zip up और zip down. एक कमेंट था क्या रे, जिप खोलने बंद करने में सारा वक्त चला गया, कमेंट आया था. सर प्लीज उसको डिलीट कर दीजिए. एक That's कमेंट why तो है I यास्मीन know, जी, अच्छा, एक कमेंट तो है. हम कमेंट ही डिलीट कर देंगे, क्या घबरा रही हैं आप? नहीं सर ऐसा नहीं. अब एज ए टीचर हम आपसे सभी कुछ पढ़ते हैं, लेकिन ये मंजर आम पे थोड़ा लगता है कि एक्चुअली अंग्रेजी में इंसान सिर्फ अच्छी क्योंकि सी मेरे बात. नाम बहुत आ रहा है वहां पर. अच्छा. क्योंकि भाई उसमें था कि फुल्ली टारगेट. After I was worried what happened, क्या हुआ, क्या क्या तो प्रॉब्लम बस हो उसमें गया. वरीड ही रहो बस अनीता मैम. उस वीडियो में व्हाट No, हैपेंड कि मैं actually I am very busy this time. My children came and they he came who came only once a सर आपको डिलीट year. कर देनी चाहिए. Once a year. जी जी. इसलिए मैं बहुत बिजी थी. मैंने 2 लाइन सुना, बस मैंने कहा बाद में देखते हैं. अच्छा अनिता जी, ये आप बोले ना माय चिल्ड्रन केम यहाँ पे, तो परफेक्ट देने से अच्छा होता ना कि आप अब तक अभी तो है आप लोग आपका ये मतलब किड्स विद यू चिल्ड्रन ना. हैव कम होना चाहिए, हैव कम. हाँ, तो दे हैव काम ना. हाँ यस यस. अभी तो मैं 1 हफ्ता हो गया मैं टच नहीं कर पा रही. मैं सुनती हूँ केवल. मे बी आई एम रॉन्ग. सर ये ओके भी डाल देंगे आप. हाँ जी, ये भी जाएगा. आए रे, सब रह जाता है, मैं तो कुछ काटता बोले ही नहीं, चुप बैठ रहे हैं क्या? नहीं बोली. अभी आप ही का टेस्ट लेते हैं यास्मीन जी, आइए. आफ्टर यास्मीन आई. बट मुझे WH वाले होम वाला मत पूछेगा जी. अभी. आई एम नॉट रेडी. ओके. सर होम का हम लोग के क्लास चाहिए, ठीक है. हाँ, होम इसको चलेगा, लेके रेडी पक्का. प्रोग्राम्स I'm लेके very- क्लास करेंगे हम लोग. स्पेशली होम आई एम कंफ्यूज्ड. या एक ना लाइव क्लास कर दूंगा, होता है ना, लाइव आइए किसी दिन. हाँ सर, एकदम. सर लेकिन सर मैं लाइव में तो आप तो सुबह आते हो ना, मैं तो नहीं मैं रात को आऊँगा किसी दिन, किसी सैटरडे रात को हाँ, तो 10 बजे के बाद फिर से 10 बजे के बाद, या किसी संडे 9 बजे रात को, तब सही. हाँ अभी 9 बजे भी अच्छा होगा सर. बट आफ्टर दिवाली सर जी प्लीज. जी जी. आफ्टर हाँ दिवाली सर, people just अभी तो inform us. this time everyone is so much busy, so that's why. जी चलिए, यास्मीन जी का टेस्ट है. आइए यास्मीन जी. पहला सेंटेंस Yes. है, जो तुमने कहा वो सच है. Whatever you said, it is true. आपने उसमें इट लगाया ना? हाँ, it is true. नहीं, इट नहीं है. वट एवर यू सेड इज ट्रू. True is true. Okay. इज ट्रू. जहाँ तुम जाना चाहते हो वो जगह सही नहीं है. Where you want to go, that place is not good. अब जैसे वेयर यू वांट टू गो के बाद फिर दैट प्लेस नहीं लगा सकते, ये रूल के अगेंस्ट है. अच्छा. अगर हमें 2 तरीके हैं मेरे पास. एक है कि पहले ही द प्लेस बोल दिया है कि द प्लेस वेयर यू वांट टू गो इज़ नॉट गुड, Okay. और दूसरा है कि वेयर यू वांट टू गो इज़ नॉट गुड, बस फिर प्लेस नहीं लगा सकते. एकदम. बारिश कल से हो रही है. It has been raining. कल से हो रही. It has been raining since yesterday. इट हैज़ Yeah. बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे. तुम सुबह से जो कर रहे हो वो कोई नहीं कर रहा है. तुम जो सुबह से कर रहे हो वो कोई नहीं कर रहा है. Whatever you have been doing since morning, no one doing this. अब इसको ऐसे कहना चाहिए कि कोई नहीं कर रहा है. No one has been doing this. हाँ, ऐसे क्यों कर. नो वन हैज़ बीन डूइंग दिस, या नो वन हैज़ बीन डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस हाँ, मॉर्निंग, है कि नहीं? यस सर, एकदम. इस तरीके से हो जाएगा. ओके. कल तुम्हारे पास क्या था वो मुझे पता नहीं है.
मेरे पास क्या था? What you had yesterday, I don't know about it. अब शुरुआत आई डोंट नो से होती है Sorry, गलत. कि आई डोंट नो व्हाट यू हैड yesterday. Yesterday. अब ये जैसे मुझे कैसे पता चलता होगा, तो मुझे पता चल जाता है कि सब्जेक्ट बनेगा कि ऑब्जेक्ट बनेगा, मुझे आइडिया हो जाता है. जैसे जो तो दिव्या जी ऑडियो ऑफ कीजिए, थोड़ा शोर आ रहा है, समुंदर किनारे है ना आप, शोर आ रहा है. तो था कि जो तुम कल कर रहे थे वो तुम्हें हार्म करेगा. अब कैसे बनेगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा. जो तुम कल कर रहे थे, what were you doing yesterday? व्हाट वर यू कि व्हाट यू वर? What you were doing yesterday तुम्हें हार्म करेगा. जी. It will harm you. फिर हम अलग से इट नहीं लगा सकते. फिर वही आ गया, will harm you. जसमिन जी अब इट ज्यादा यूज कर रहे हो आप. तो होना चाहिए कि व्हाट यू वर डूइंग yesterday will harm you. Will harm you. Okay, अच्छा. ये क्लॉज है, और क्लॉज अभी मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन यास्मीन जी तो ऑलरेडी कितनी बार सीख चुकी है क्लॉज. बस एक बार सीखा है सर. एक बार. एक ही बार तो सीखा. ओके. जो चाकू टेबल पर पड़ा है वो सस्ता दिख रहा है. Which knife lying on the table? विच से शुरू कर ही नहीं सकते. विच से शुरू नहीं कर नहीं सकते. कर सकते, द से करेंगे. द नाइफ विच. ओके. द नाइफ विच इज ऑन द इसके बाद टेबल. विच आएगा. द नाइफ विच ऑन द टेबल. विच इज ऑन द lying टेबल. on the table. क्या है, इसको यूज नहीं कर सकते. नहीं, वो सस्ता दिख रहा है. ओके. इट सीम्स टू बी चीपर. सीम्स टू बी, हाँ सर, हाँ सीम्स टू बी चीप. हाँ सही है, सही चीप. चीप. जो मोबाइल मैंने खरीदा है उसकी कीमत 80,000 रुपये है. The mobile I bought इसका प्राइस सस्ता है. 80,000 रुपये मैडम. 80,000. His price 80,000. मतलब शुरुआत कैसे की? द मोबाइल से आपने की. हाँ. कैसे बोला? द मोबाइल आई हैव बॉट. The mobile I have, जो मैंने खरीदा है, the mobile I have bought अब 80,000 का है, तकरीबन 80,000 का है. जी. अब आगे क्या इसकी होगा? इसकी कीमत his price नहीं, तो फिर आप 80,000 कह सकते हैं. अब दिक्कत है कि फिर हम उसमें एट्स वेट्स नहीं लगा पाएंगे. दिक्कत ये है. इट नहीं लगाया मैंने. तो आपने तो इसकी इसकी कीमत का क्या रखेंगे? इसकी कीमत क्या रखेंगे? ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइस ऑफ दैट मोबाइल, Its cost. द प्राइस ऑफ दैट मोबाइल 80,000. फिर जो मैंने खरीदा वो कैसे डालेंगे? जो मैंने खरीदा है ना. बड़ा चक्कर है. ये आप बताइए कैसे होगा पूरा. May I try, sir? जी ट्राई कीजिए. The mobile which you have bought price 80,000 rupees. नहीं, फिर प्राइस मैच नहीं किया. The mobile that I bought cost 80,000, sir. ठीक है, फिर कॉस्ट Is- को फिर कॉस्ट करना पड़ेगा. उसको Is वर्ब cost बनाना. no? Cost 80,000 rupees. अगर उसको पास्ट करना है तो कॉस्ट का सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट होता है, तो वर्ब Yes, करना. sir, सभी तो cost होता है. हाँ. लेकिन अगर कोई ऐसा ना करे तो फिर स्टेट ऑफ बीइंग में बोले कि उसकी कीमत इतनी है, तो फिर द प्राइस ऑफ द मोबाइल विच आई बॉट मोबाइल इज 80. इज, फिर इज लगाया. ऐसे बोलना, द प्राइस ऑफ द मोबाइल विच आई हैव बॉट इज 80,000 रुपये. Yes, The okay. mobile which I bought is 80,000. Yes, sir. यानी कि एकदम हमने द प्राइस रखा. द प्राइस हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. और इज 80,000 रुपीज इसका प्रेडिकेट हो गया, है ना. और बीच में क्लॉज आ गया विच आई हैव परचेज्ड. आ गया ना. और सर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे
The mobile that you bought cost 80,000. हाँ, फिर कॉस्ट को वर्ब बनाना पड़ेगा, तब बोल पाएंगे, तब सही। अब देखना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या, कॉस्ट पास्ट है कि 80,000 पड़ा या 80,000 पड़ता है हमेशा। कॉस्ट को चेंज करेंगे, कॉस्ट्स ऐसे होता Okay. है। और कॉस्ट का सेकेंड फॉर्म भी कॉस्ट रहता है, कॉस्टेड तो होता ही नहीं। cost सर। अब जैसे बोल रहे हैं कि वो महिला जो समुंदर के किनारे टोपी हाथ में लेकर खड़ी है, उनका नाम दिव्या है। That lady That- who is standing on the sea beach, she has a cap in her hand. और उनका नाम दिव्या है भी बोलना है। Her name is Divya. The girl standing beside the sea with a cap in her hand, इस दफे में थोड़े होगा। whose name is Divya, sir. ऐसे The ना lady who is standing on the sea beach, The lady who is अगर standing near the sea Hmm. with cap in her hand, named Divya. with cap तो फिर Holding- her holding- hand, With Holding- cap, holding yeah, cap. holding cap. The in lady her holding hand. cap, Holding holding cap cap. in her on hand, the sea Ah. beach, holding cap in her hand. The lady Her who name is standing holding beside the the sea cap. holding a Her cap name is is Divya. Divya. Her name is Divya. देखिए, जब आप कभी क्लॉज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोबारा हम हर हिज नहीं लगा सकते, ये शर्त Oh, होता है। अच्छा अच्छा। ये तो था हाँ। नहीं तो फिर इंसान दो टुकड़ों में बोलेगा, फिर इतने पंगे क्यों लेगा। क्लॉज का मतलब है कि एक बार अगर आपने शुरू किया तो फिर कोई हर हिज नहीं, सीधा फुल स्टॉप तक जाना है बॉस। ये है। Oh. सर इसका जैसे हो जाएगा द लेडी हुज नेम दिव्या होल्डिंग द कैप इज दिव्या। नहीं, फिर दो बार दिव्या बोल दिया आपने। So the lady who is standing in front of beach with cap, सर मैं एक बार his name is Divya. Standing on the sea has a cap in her hand. Her name is Divya. ये अभी ठीक हर नेम नहीं लगा सकते ना, शर्त ये है। हाँ, हाँ। देखिए, Only name. The lady madam. is standing Name in front Divya. of beach with cap. एक तरीका ये है, अगर आप द लेडी से उठा रहे हैं, सर एक बार बोले मैं सर कोशिश करें एक बार। बोलिए बोलिए। The name of the girl who standing beside the sea holding a cap is Divya. हाँ, एकदम करेक्ट हुआ, एकदम करेक्ट। हाँ, तो अब जैसे इन्होंने द नेम से शुरू किया, पहले ही द नेम कर दिया तो द नेम ऑफ द लेडी, फिर लेडी का के बाद क्लॉज लगा दिया कि हु इज स्टैंडिंग एट द सी बीच होल्डिंग अ कैप। फिर उस नेम का प्रेडिकेट क्या था, इज दिव्या, द नेम इज दिव्या, लास्ट में इज लग गया। अगर किसी को द नेम नहीं लगाना था, जैसे आप में से सारे लोग द लेडी से उठा रहे थे ना, तो उसका क्या तरीका था, जैसे आप कह रहे थे कि द लेडी हु इज स्टैंडिंग एट द सी बीच होल्डिंग अ कैप, फिर आप सीधा बोलिए इज दिव्या, कोई नेम मत लगाइए, क्या बोलना है, इज दिव्या, हो जाएगा। ये सब समझाइए। So चलिए the girl who is standing on the sea beach has a cap in her hand इज and दिव्या, her name is नेम नहीं, फिर नेम नहीं बोल सकते, name फिर खाली इज, is name फिर नेम नहीं बोल सकते। name नहीं बोल सकते is Divya. इस Okay. दिन जैसे मैं बोलूं कि जिस महिला का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं वो सिंगापुर में रहती है, कैसे होगा। मुझे बताना है। हाँ, इसको ट्रांसलेट करना है कि जिस महिला का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो सिंगापुर में रहती है। The lady is living in Singapore. हाँ, the lady तो आएगा। सही। She is living in Singapore. She is Yasmin. May I, sir? हाँ, बोलिए। The lady who lives in The Singapore. lady who lives The in lady Singapore. I am taking interview lives in Singapore. देखिए ऐसे होगा, द लेडी तो पक्का होगा, है ना, द लेडी। अब The lady, हम the lady,
बोल रहा हूँ আমি বলছি তো দ্য লেডি जिनका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, द लेडी हुज इंटरव्यू whom I हुज am taking इंटरव्यू interview. आई एम टेकिंग लिव्स इन सिंगापुर। अलग से मैंने कोई शी तो नहीं लगाया। ये सब तरीका है। Whom सर ऐसे भी interview बोल सकते I'm हैं taking. the lady who lives in Singapore taking the interview. नहीं, फिर आप बना ही नहीं पाएंगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको हु लेडी के बगल में ही लगाना है, ये शर्त है। अच्छा, जैसे- मतलब सब्जेक्ट को हम लोग को ठीक ठाक आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे ना सर। जी, सब्जेक्ट हम जब लोग क्लॉज जब identify- सीखेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको जितने भी शी वी इट विट हर हुर सब हटाना पड़ेगा। तो सर बस सिंपल ऐसे बोल सकते whose I am take नहीं whose interview I am taking lives in Singapore ऐसे होगा। सिंपल, द लेडी मेन हमारा है, लेडी सिंगापुर में रहती है ना, द लेडी लिव्स इन सिंगापुर। the girls who is lives in Singapore। नहीं, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कह रहा हूँ महिला सिंगापुर में रहती है, लेकिन मैंने क्या जोड़ा, वो महिला जिनका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, इतना ही जोड़ा ना मैंने, इंटरव्यू ले रहा हूँ। अच्छा हाँ। है ना। तो मैं ये जो जिनका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, ये स्टेटमेंट, ये जुमला मैं कहाँ पे ऐड करूँगा, तो मैं लेडी के बाजू में ऐड करूँगा कि द लेडी हुज इंटरव्यू आई एम टेकिंग लिव्स इन सिंगापुर। हो गया, Girl whose अच्छा, interview I am taking lives in Singapore। लिव्स इन सिंगापुर। अब जैसे मैं बोलूँ कि वो महिला जो बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई खड़ी हैं, उनका नाम मोना ठाकुर है। से बोलो उसको मैं। The girl The girl who is The lady who is wearing a beautiful sari is Mona. the lady who wearing a beautiful sari name is Mona. इज मोना, Name नहीं is क्योंकि Mona. फिर हम Name नेम नहीं आएगा, is नेम नहीं बोल Mona. सकते। और अगर नेम बोलना होगा तो फिर द नेम पहले बोलेंगे कि द नेम ऑफ द लेडी The name of the lady who wearing a beautiful sari इज मोना ठाकुर। is Mona Thakur. हाँ। मुझे और भी जोड़ना था कि जो महिला खूबसूरत साड़ी पहनी है, हाथों में क्या है, लहठी टाइप कुछ है, बाल खुले हैं, माथे पे बिंदिया है, गले में कुछ लगा, मतलब पूरा अगर डिस्क्राइब करना हो तो कैसे, लाख मेहनत। गले में कुछ है sir ना। तो सिंपल the lady who is wearing beautiful sari is Mona Thakur ऐसे हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो गया। simple। हो गया। सर पूरा बोल के बताइए ना, बाल खुले हैं ये कैसे बोलते मैं ऐसे बोलिए ना सर। नहीं, मैं खाली हिंदी हैं? बोल पे रहा हूँ। बिंदी है, ये सब कैसे बोलेंगे? ये अंग्रेजी तो आपको बनानी है, नहीं तो लास्ट में मैं बोलूँगा। Who is wearing Beautiful sari. bindi on her forehead Hair and her hair khula open. is open नहीं होता है hair. Hair हार are आएगा जब हर हेयर आर तो बहुत से बाल है ना, तो हेयर आर ओपन, हेयर is an open हर hair. हेयर आर She apply and she is wearing some beautiful bangles on her on head. her head। बाल खुले हैं, नहीं समझ में आ रहा बस। विद ओपन हेयर, द लेडी विद ओपन हेयर। अच्छा, And with hair. open hair. Wearing lot of bangles on her Hand. लिखते समय ना हम लोग And कॉमा वो लगा लगा के कला- बोलते हैं। Apply कलाई the को क्या बोलते हैं? bindi. Wrist. Apply the Wrist. bindi on her on forehead. her head, forehead, wearing lot of bangles in With nose pin. at her क्या बोलते हैं, Head. नहीं है. wrist हाथ चूड़ी तो हाँ, हाँ। Hand. हैंड बोलेंगे। ठीक है, ऑन रिस्ट कह दीजिए, बैंगल्स ऑन द रिस्ट, कलाई पे। Wearing jewelries बोल देते हैं ना। ज्वेलरी में सब आ गया। गोल्ड भी लगा सकते हो, wearing golden jewelry. गोल्ड ही दिख रहा है आपका, वो जो बंगाली वाला व्हाइट चूड़ी है ना, वो भी शायद इसी कॉस्ट पर मिलता है, वो पहना हुआ है। हाँ, या White वाला। हाथी के दांत वाला चूड़ी तो नहीं। यस वही वो भी कॉस्टली होता है। No sir, this is a plastic bangle. Okay. तो उसको शाखा, हम लोग उसको शाखा बोलते I हैं। can't wear expensive jewelry. साका पोला बोलते हैं ना, शाखा सुजय? पोला, yes, साका पोला, हाँ, exactly. Saka pola, yeah. हाँ, But- when I went to आपके वहाँ गई थी, मैं नॉलेज खड़ा सारी है सर को। टॉल लड़की कोटा को या लड़का?
तब मैंने ये मेल खरीदा और था, मुझे फीमेल पता चला लेकिन Made of sand. दांत वाली भी पता है। हाँ, बट ये साड़ी कमाल नहीं लग रहा है एकदम, जो मैच कर रहा है, जो क्या बोलते हैं उसका, जो सर एक बात बताऊं, ये एक्चुअली साड़ी नहीं है, ये कपड़ा था, एक बाजार में टंगा था, मैंने उससे बोला 5.5 मीटर काट के दे दे और मेरे से साड़ी बना ली। अरे वाह, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना। और वो जो डिज़ाइन है हाथों पे नहीं, वो डिज़ाइन है, क्या बोलते हैं, ब्लाउज पे डिज़ाइन, दैट इज अमेजिंग। खैर, तो ये जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ये बड़े बड़े सेंटेंसेस क्लॉज कहलाते, बात ख़त्म है ना, क्लॉज है। तो इसमें कदम रखने का वक्त अब धीरे धीरे आ रहा है। जैसे अगर ऐसा बोलना है कि जिस टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है वो टेबल सागवान की लकड़ी का बना हुआ है। मुश्किल लैपटॉप रखा हुआ है, वो वो सागवान लकड़ी का है। जी जी, The laptop द kept टेबल on से the table. टेबल से स्टार्ट होगा, द टेबल हाँ, द टेबल मेड बाय सागवान, No, the table. नो ये तो बात Made नहीं by है। Laptop मेड बाय kept on सागवान वुड, लैपटॉप The laptop द लैपटॉप kept the laptop kept on table. on table. It is made by the laptop kept on table was made by is made by sagon लकड़ी wood. The table on which laptop is kept is made of sagon. The computer keep on the table देखिए, मैं कैसे सोचता हूँ, is made by, मैं सोचता हूँ कि टेबल, मैं ऐसे सोचता हूँ कि टेबल जो है वो सागवान लकड़ी का है। मैं एक सेंटेंस निकालता हूँ, अब फिर मैं देखता हूँ कि टेबल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि जिस पर एक लैपटॉप रखा है, यही है ना, यही है। Yes, sir. Exactly. तो मैं उठाऊंगा द टेबल से कि द टेबल, अब मैं टेबल के बाद वो क्लॉज लगाऊंगा कि ऑन विच मतलब जिस पर, ऑन विच अ लैपटॉप इज केप्ट, इज केप्ट, is made of हाँ, इज केप्ट इज मेड ऑफ सागवान, Made of. made by sagon. यानी मेड ऑफ मेड के साथ ऑफ, Made of. हाँ, made of yes. अभी सर मेरे को भी थोड़ा पूछ लीजिए। हाँ सर, अभी समझ में आ रहा है। मतलब मेरे को पहले सिंपल सेंटेंस बनाना है, उसके बाद वो जिसके बारे में बोले उसको अंदर घुसाना है। ठीक है, अंदर घुसाना, ठीक है। मतलब द टेबल मेड बाय सेगुन काट, देन you have to put the The table. table which made name. अच्छा, अनिता जी से पूछता हूँ, on which laptop laptop is kept. the table on which the laptop is kept is Kept made of Made made of sagon. sagon wood. एक सवाल अनिता जी के लिए, ठीक है। Yes sir. वो कुर्सी, I consider yes. वो कुर्सी जिसका रंग ऑरेंज है वो धूप में पड़ी हुई है। Okay. The chair is पड़ी हुई का सर बता दीजिएगा प्लीज। पड़ी पड़ी हुई मतलब मतलब या रखी हुई है, इज केप्ट, रखी हुई है। kept. अच्छा, the chair kept, वो कुर्सी जो धूप में पड़ी हुई है उसका रंग लाल है, रेड है, जो भी है ना। तो the table which kept on sunshine color is red. The chair which color is orange is lying in the sunlight. क्यों भाई? the chair which color is orange kept on the sun. Sun. पड़ी हुई है। हमने यहाँ lying in the sunlight. Under the sunlight. अंदर नहीं आएगा, एक सुनिए, इन आएगा। उसका कलर ऑरेंज है, इसको तो हम लास्ट में ही लेंगे ना, उसको हम लास्ट में लेंगे। नहीं। कलर इज The ऑरेंज। chair whose color is orange Whose is lying in the sunlight. Which color is orange? देखिए, दो तरीके हैं, मैं दोनों से कर देता हूँ। मैं ऑरेंज को लास्ट में भी लगा सकता हूँ, बीच में भी लगा सकता हूँ। अगर मैं लास्ट में लगाऊंगा तो बोलूँगा कि द चेयर विच इज़ केप्ट इन द सन हैज़ ऑरेंज कलर, है ना। अगर मैं लास्ट में लगाऊंगा तो मैं ऐसे बोलूँ, और अगर मैं ऑरेंज को बीच में लगाऊँ तो मैं बोलूँगा कि द चेयर ऑफ विच कलर इज ऑरेंज इज केप्ट इन द सन। गेटिंग माई पॉइंट?
सर हम ये भी तो बोल सकते हो सर, द ऑरेंज चेयर केप्ट इन द सन। बट हम ऐसे बोले ना, द चेयर केप्ट ऑन, हम सनशाइन बोलते हैं, सनशाइन इस कलर, इट्स कलर इज वही ऑरेंज। शर्त है कि जैसे नेम नहीं बोल सकते थे तो कलर फिर यहाँ नहीं बोल पाएंगे, फिर हमें लगाना पड़ेगा हैज ऑरेंज कलर, हैज ऑरेंज। हाँ, या इज लगाएंगे तो एक और तरीका है, इज ऑरेंज इन कलर। इंस्टेड ऑफ बीइंग से बोल सकते हैं। इज ऑरेंज कलर्ड भी कह सकते हैं ना सर, इज ऑरेंज कलर्ड। इसका क्या बोला सर, धूप में रखी है? इन द सन। इन द सन, इन द सन ही आएगा ना। अच्छा चलो मैं दूसरा पूछता हूँ। दूसरा सेंटेंस ये है, जो गेट आधा खुला हुआ है उसकी कीमत 25,000 रुपए है। The gate which The gate was half open. half open. Its price is 25,000. The gate which The is half gate which is open, ajar half. cost 25,000. The gate which is half opened. The cost gate that is half open cost 25,000. ये अजार बोल सकते हैं। अच्छा मान लो अगर किसी को एक मिनट, which is अजार, ऐसे भी बोल सकते हैं ना सर, the half open gate cost मतलब 25,000। हम बोल तो सकते हैं। नहीं सही, The अच्छा gate सही which is किया आ रहा है। The gate which is half opened, price is इतना। दिक्कत ये है, सुनिए मेरी बात, जब द गेट विच इज हाफ ओपन के बाद फिर आप प्राइस नहीं बोल पाएंगे, दिक्कत ये है। अच्छा, तो आपको क्या करना होगा कि प्राइस को पहले बोलना होगा, द प्राइस ऑफ द गेट, ऐसे करना होगा, द प्राइस ऑफ द गेट विच इज हाफ ओपन इज 25,000 रुपीज। यस सर, राइट। तब जाके प्राइस फाइन गाइस। अब आप लोग पूछिए अनीता जी से कोई भी इस तरह के सेंटेंस। मैं बिल्कुल अब आई एम टायर्ड ऑफ आस्किंग, तो प्लीज़ एनीबडी कैन कम फॉरवर्ड जो पूछ सकते हैं। आई थिंक पूजा पूछने में एक्सपर्ट है। पूजा Is she joined today? पूजा इज हियर। हाँ है ना, पूजा है सर। अच्छा पूजा है। अच्छा Really? तो अच्छा मैं तो इसके बारे में पूजा है, वो शुभदा थी जो रीडिंग करती थी। शुभदा, सॉरी शुभदा, सॉरी सर। where is Shubda?